Hello students, welcome to Europe Education. I am Jitendra Tyagi. So as all of you know, every student from engineering background or science background, everyone want to work with government of India. Actually, it is a dream of all of us to work with government of India, especially as scientists. Okay, so the best opportunity which is provided by BARC for students who want to become scientists in India. Okay, so now the recruitment process which is done regularly each year by BARC. So they have announced again the recruitment process. You can see here Government of India, Department of Atomic Energy, Bhabha Atomic Research Center, BARC. Okay, you all know about BARC. So they are going to conduct the recruitment process for Group A post. Okay, साइंटिस्ट का गजिस्ट्रेट ऑफिसर पोस्ट है, ग्रुप ए कैटेगरी में है, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है. And we all want to work in this organization. So here is the opportunity, and we will discuss what are the key points. Okay, so this PDF you can find on the website of BARC also in the recruitment process. Okay, so I will show you some of the highlights. Right, this is a big PDF, so you need to go through this PDF if you want to apply. Okay, you have to read all the lines and carefully you have to fill the form. 30th of January is the last day to fill the form. Okay, so I will tell you some of the highlights of this. Okay, so training schemes and employment description. So you know, in BARC there are two categories actually. One is OCES and another is DGFS. Okay, simple है OCES और DGFS. So क्या difference है? What is the difference? OCES में both give you employment, permanent employment. Okay, दोनों में गवर्नमेंट जॉब आपकी लग रही है सेम ऑर्गेनाइजेशन में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में कि अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी जॉब भी सेफ रहे बार्क के साथ, सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है डीजीएफएस से. ओके, डीजीएफएस में क्या होता है कि आपने बार्क का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर किया. ओके, यू हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस और आपका सिलेक्शन होता है. Simultaneously, independently you are applying in different IITs for MTech admission, and you get admission in IIT Bombay or IIT Madras. There are two IITs mainly, IIT Bombay, IIT Madras, okay, with which BARC has done this collaboration. Okay, so if you join MTech on your own in any of the two institutions, then you can enroll for this DGFS. You are selected in BARC, okay, on the basis of GATE score and then interview or written exam and then interview finally, and separately you keep applying for IITs and you get admission in MTech in IIT Bombay or IIT Madras in certain specializations. Okay, then you can convert yourself into DGFS. So you can join MTech, you can do MTech, you will get your tuition fee of MTech from BARC. Okay, you will get stipend also, monthly stipend also. MTech degree will be done. In that 1 year you have to complete the coursework, and second year you have to do the project given by the BARC. Okay, during your MTech you do a project na, so that project will be decided by the officials of the BARC. Okay, in collaboration with your guide, right? So this is the DGFS scheme, and in OCES scheme directly you join the organization, you go for the training. Okay, and there are various steps of the training, and then you complete the training and then you can join as the officer, scientist. Okay, so these are the two schemes mainly. It is your choice whether you want to do MTech and then job, or directly you want to go for training, you don't want to do MTech, or you don't get admission in IIT Bombay or suppose IIT Madras. Okay, then you go for OCES. Now what other important points we can see here? Please go through this in detail. Okay, I am not reading line by line, important points only I will tell you. Okay, so grade and pay scale you can see. Okay, that is very good pay scale at beginning. Now come to the selection process. Okay, so selection process में देखो क्या होता है. पहले आप you can go through gate. अगर गेट में अच्छा स्कोर है उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ क्लियर होता है, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. ओके, एक तो गेट के थ्रू आप जा सकते हो फॉर इंटरव्यू जाना पड़ेगा आपको. एंड सेकंड इज BARC conduct their examination also. Okay, so if you don't qualify gate suppose, or you have less score in gate,
So you can clear their written examination. Okay, if you clear their written examination, on the basis of that also they will shortlist you for the interview. Then ultimately you have to clear the interview. Final selection will be based on the interview and medical actually. Okay, and there is one more way that is limited to some of the students who are studying in only two important colleges, two important institutions. Okay, so based on their CGPA they call for interview. Okay, so this is the selection process. Now GATE, you know, this one is on the basis of CGPA score of CBS and NISER. Okay, so what is this CBS? Department of Atomic Energy Center for Excellence in Basic Sciences. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CBS. अगर आप यहाँ से करते हो, ठीक है, ग्रेजुएशन विद सर्टेन CGPA, ओके, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च NISER भुवनेश्वर, यहाँ से करते हो, ओके, तो आपके CGPA के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू. ओके, सो देयर आर 3 मेथड्स, बट ये लिमिटेड है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, दोज आर एनरोल्ड इन दीज इंस्टीट्यूशंस. फॉर ऑल जनरल देयर आर 2 ways. You can go for exam or you can go through GATE. Okay, GATE score will be applicable 2024, 23, 22. 3 GATE स्कोर वैलिड रहेंगे, 22, 23, 24. उन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ आपका बनेगा. ओके, नाउ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन चूज एनी वन और मोर देन वन. मींस आप जब फॉर्म फिल करोगे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हो. ओनली आप गेट के थ्रू केवल जाना चाहते हैं, ओनली गेट, या ओनली एग्जाम, या बोथ, ठीक है ना, मोर देन वन. सो आपको ये चूज करना है मोर देन वन, मतलब आप दोनों ऑप्शन को ओपन रखो. अगर गेट में अच्छा करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप एग्जाम का ऑप्शन भी ओपन रखना है, तो दोनों वाला चूज करना है आपको, जिसमें दोनों अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ इंटरव्यूज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं ज्यादा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 60% मार्क्स चाहिए मेनली, ठीक है, आपके बीटेक में. और यहां पे मार्क्स जो चलता है वो एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर नहीं चलता, जो डिक्लेयर्ड होता है योर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय द योर इंस्टीट्यूशन, वही ये कंसीडर करते हैं. ठीक है, एग्रीगेट को नहीं देखते. आपकी डिग्री पे जो मेंशन्ड है दैट इज हियर एक्सेप्टेड. ओके, सो बाकी पॉइंट्स आप रीड करेंगे धीरे धीरे बाद में. अभी मैं केवल हाइलाइट्स आपको शो कर रहा हूं यहां पे, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स. एडमिशन फी 500 है जनरल मेल एप्लीकेंट के लिए फ्रॉम जनरल एंड ओबीसी. ठीक है, जनरल ओबीसी के जो मेल एप्लीकेंट है उनसे 500 फीस है, और जो बाकी बच्चे हैं, ठीक है, जैसे वुमेन कैंडिडेट सारी फ्री हैं, एग्जम्प्टेड है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी. ऑल वुमेन आपको फॉर्म फिल करना ही है. ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST या फिर ट्रांसजेंडर या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, ओके, या फिजिकली चैलेंज जिनका 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, सो इनके लिए फ्री है. इन कैटेगरीज में एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है. राइट, नाउ हाउ टू अप्लाई. सो इनकी वेबसाइट पे जाके आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, और जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी उनको प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट फिल करना है. ओके, अपलोड करने डॉक्यूमेंट. वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.barkocsexam.in. ओके, सो इस पूरे प्रोसेस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या साइज चाहिए. ओके, देन यू कैन फिल द फॉर्म. उसके बाद आता है, देखो ब्रांच के हिसाब से इन्होंने ये दिया हुआ है टेबल, आप बाद में इसको रीड कर सकते हो कि क्वालिफाइंग डिग्री फॉर OCS स्क्रीनिंग डिसिप्लिन, मतलब OCS या DGFS में कौन सी डिसिप्लिन है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग डिग्री, कौन कौन सी डिग्री एलिजिबल है, और गेट पेपर कौन सा है. ठीक है ना, और ट्रेनिंग स्कीम का नाम क्या रहेगा. तो जैसे मैकेनिकल में है तो BTech BSc इंजीनियरिंग या 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और गेट पेपर आपका मैकेनिकल में होना चाहिए. राइट, केमिकल के लिए केमिकल में है गेट पेपर, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं ये. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BTech या BSc इंजीनियरिंग या 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ओके, सो ये डिग्रीज यहाँ पे एलिजिबल हैं, और गेट इन इलेक्ट्रिकल इज रिक्वायर्ड. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कौन कौन सी ब्रांचेस है, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है,
इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ईसी गेट पेपर रहेगा, राइट। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सो कंप्यूटर साइंस में भी अगर आपकी डिग्री है देन यू कैन अप्लाई इन सीएस पेपर, ओके। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल दीज ब्रांचेज आर एलिजिबल, ओके। सिमिलरली फॉर सिविल तो आप ये पूरा पीडीएफ रीड करेंगे, उसमें अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी, ओके। अब देखो कहां पे कौन सा ट्रेनिंग स्कीम है और ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। बार्क मुंबई में क्या क्या है, बार्क मुंबई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल है, ठीक है ना, जो ट्रेनिंग स्कीम्स वहां पे हैं बार्क मुंबई में। दूसरा है एएमडी हैदराबाद में, जियोलॉजी डिसिप्लिन है केवल वहां पे, जैसे ये दूसरा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, एडमिसिबल डिसिप्लिन एमटेक स्पेशलाइजेशंस एंड डीजीएफएस इंस्टीट्यूशंस, मतलब मैकेनिकल में एमटेक प्रोग्राम थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग है, ठीक है, और कहां पे, आईआईटी बॉम्बे में। तो अगर आप ये एमटेक ज्वाइन करते हो तब आप बार्क ज्वाइन कर सकते हो, ओके। ये डिसिप्लिन अवेलेबल है वहां पे एमटेक में। इसी तरीके से थर्मल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास में अवेलेबल है मैकेनिकल में, ओके। डिजाइन इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे में एलिजिबल है। तो ये सारी ब्रांचेज और इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे मेंशन है कि कहां पे एमटेक एडमिशन एक्सेप्टेड है यहाँ पे डीजीएफएस स्कीम के अंडर में। सो प्लीज गो थ्रू दिस, ओके। आप चूज कर सकते हो किस किस ब्रांच में आपको अप्लाई करना है एमटेक में, ताकि आपका ये ऑप्शन ओपन हो जाए। नाउ कम टू इंपॉर्टेंट डेट्स। सो 30 दिसंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 30 जनवरी, 30 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। सो उसके पहले प्लीज इसको फिल कर लीजिए, ओके। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 19 फेब से पता चल जाएगा आपको, और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 19 फेब के बाद। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो आप नोट कर लेंगे, 16 मार्च, 17 मार्च। गेट का रिजल्ट भी अराउंड उसी टाइम आता है, ओके। सो गेट के रिजल्ट के साथ में आपको एग्जाम देना है उसी टाइम पे, ओके। और गेट स्कोर अपलोड करना है आपको 19 मार्च से 24 मार्च के बीच में। सो ये सारा प्रोसीजर आप नोट कर लीजिए और इस वेबसाइट पे जाके आप सारी डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ हाइलाइट्स ये समझ में आई हैं, और इस पीडीएफ को एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। ऑल द बेस्ट।